الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اس سے پہلے جب توحید کی دعوت پیش کی گئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس لیے کل کی آیات میں ان کا تذکرہ ہوا۔ زمانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت دعوت یعنی جنہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا تھا ان کو تو ہلاک کر دیا گیا، اور امت اجابت میں صرف ان کے 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے، سام، حام اور یافیس، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے کل 8 بیٹے تھے، اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، چونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا تو ان کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، 400 سال کے بعد وہ آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو خاتم و انبیاء بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے ہیں، اس لیے ان آیات میں بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو نوازا تھا، یہ تو اجمالی تذکرہ ہے، آگے تفصیل سے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور وہ کتنے شکر گزار تھے اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو بھی حکم دیتے تھے اس کے خلاف ہی کرنا ان کی عادت تھی۔ کتے کی دم تو سیدھی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، مگر بنی اسرائیل سدھر جائے یہ امپوسیبل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ خود قرآن کریم کے بعد جس آسمانی کتاب کا درجہ ہے تورات، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ اتنے ہزاروں انبیاء ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور ان سے ان کو نجات تھی۔ جب دریا پار ہو گیا اور ملک شام کی طرف جانے کا حکم ہوا تو وادی تیہ کے اندر کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ دھوپ سخت تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کیا۔ پانی کا انتظام نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا تھا، اور اپنے وقت پر پوری دنیا پر فضیلت بنی اسرائیل کو تھی، لیکن امت محمدیہ کے آنے کے بعد ان کی یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو وہ نعمتیں کون کون سی آگے تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے، اس کا اجمالی تذکرہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم نے مجھ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو تم پورا کرو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے میں وہ پورا کروں گا۔ کون سا عہد اللہ نے کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا عالم ارواح میں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب انسانوں نے کہا تھا، اس میں بنی اسرائیل بھی تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو یہ آخری کلام اور آخری نبی بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس قرآن کو بھی مان لو اور آخری نبی کو بھی تسلیم کر لو۔ ایک عہد وہ ہے۔
दूसरा अहद खुद बनी इसराइल से, जिनका तस्करा सूरह माइदा में है, वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया था। आगे आयत में है लइन अक़मतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाजों का एहतिमाम करोगे, व आतईतुमुज़्ज़का, और ज़कात अदा करोगे, व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, व अज़्ज़रतुमूहुम, और तुम उनकी मदद करोगे, तक़वियत इनके दिन को पहुँचाओगे, व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करेगा। तो जो अहदा अल्लाह ने तुमसे लिया है, तुम अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करो। अल्लाह ताला फरमाते मैं अपने अहद को पूरा करूंगा। व इय्याय फरहबून, और सिर्फ मुझ ही से डरो। कौम के वो लोग जिनकी मालदारी की वजह से तुम तौरात का हुक्म बदल देते हो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, डरो मुझसे। व आमिनो बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने उतारी है, यानी कुरान पाक। जब आखिरी दौर में आखिरी नबी उस कुरान को लेकर आए गए, तो अब इस कुरान पर ईमान लाओ, क्योंकि यही कुरान तौरात की तस्दीक कर रही है। और ये कुरान हो कि तौरात हो, एक ही चश्मे से दो नहरें जारी हुई हैं, एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। जैसे तौरात पर ईमान लाए, कुरान पर भी ईमान लाओ। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, यह कुरान तो उस किताब की तस्दीक कर रही जो तुम्हारे पास है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बि, और सबसे पहले तुम कुरान का इनकार करने वाले मत बनो, क्योंकि यहूदी ही वो कौम थी जिनके पास आसमानी किताब और आसमानी इल्म था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही कुरान का इनकार करेंगे, तो मुशरिकीन जिनके पास आसमानी तालीम नहीं है, उनको देख करके जब इल्म वाले ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो हम तो बतरीके औला करेंगे। तो सबसे पहले नबी का और कुरान का इनकार करने वाले तुम मत बनो, वरना लोग तुम्हारे पीछे चलते रहेंगे, तुम्हें अपने अमाल की भी सजा भुगतनी पड़ेगी और पीछे आने वालों की भी सजा भुगतनी पड़ेगी। वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, तौरात के अंदर कुरान के मुतालिक और आखिरी नबी के मुतालिक जो बातें बयान की है, समन कलील ले करके इनको मत छुपाओ। वइय्याय फत्तकून, मुझसे डरो, कौम के बड़े लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और तुम हक बात को नाहक बात के साथ मिलाकर लोगों के सामने पेश मत करो। जो तौरात के अंदर औसाफ बयान किए गए आखिरी नबी के और आखिरी किताब के, वो सब के सामने बयान करो। वतक्तुमुल हक़, और हक बात को भी मत छुपाओ। वअंतुम तालमून, दरा हाले कि तुम जानते हो कि आखिरी नबी और आखिरी किताब के ताल्लुक से तौरात के अंदर क्या क्या चीजें बयान की गई है, मगर तुम आवाम से छुपाते हो जो नहीं जानती है, ताकि वो ईमान न लाए। वअक़ीमुस्सलाह वआतुज़्ज़का, और नमाजों का एहतिमाम करो। वआतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। मालूम हुआ बनी इसराइल में भी नमाज का हुक्म था और ज़कात की अदायगी का हुक्म इनको भी दिया गया था। तफसील में इख्तिलाफ हो सकता है कि नमाज की अदायगी का तरीका अलग हो, ज़कात की अदायगी में कुछ इख्तिलाफ हो जो आखिरी उम्मत को अहकाम दिए गए उसमें, मगर ये दोनों हुक्म उनमें भी बाकी थे। वरकाऊ मार राकिन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तन्हा नमाज मत पढ़ो, रुकू करने वाले जब रुकू करे, यानी जमात के साथ नमाजों का एहतिमाम करो। बनी इसराइल की नमाज में रुकू नहीं था और आखिरी इस्लाम में रुकू है नमाज में, तो इनको कहा गया रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी इस उम्मत पर जिस अंदाज से नमाज फर्ज की गई है उस अंदाज से पढ़ो। इस उम्मत में भी लोग नमाज का एहतिमाम करते हैं, मगर इनफिरादी तौर पर, जमात के साथ नहीं। जमात के साथ नमाज का एहतिमाम करो। अतमुरून अन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम, बनी इसराइल यहूद में से कुछ लोग मुसलमान हो गए थे। जब ये करीबी रिश्तेदार जानने वालों के पास जाते थे और कहते थे हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनके जानने वाले कहते थे तुमने बहुत ठीक काम किया है, इस्लाम वाकईतन सच्चा मजहब है, तुमने अच्छा काम किया है। कुरान इन लोगों से कह रहा है अतमुरून अन्नास बिल बिर्र, लोगों को तो भलाई का हुक्म देते हो, व तनसौना अनफुसकुम, और अपनी जात को भूल जाते हो। तुम तो कह रहे हो इस्लाम सच्चा मजहब है और इनको कह रहे तुमने ठीक काम किया है, तो फिर अपनी जातों को क्यों भूल जाते हो। वअंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत कर रहे हैं। अफला ताक़िलून, क्यों बात समझते नहीं हो, क्या सर भेजे से खाली हो गया है। अफला ताक़िलून, इनके अंदर दो बातें पैदा हो गई थी, एक है हुब्बे माल और एक है हुब्बे जा, जिसकी वजह से वो तौरात के अहकाम को भी बदल देते थे माल लेकर के।
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, दोनों बीमारियों का इलाज कुरान ने बताया। सब्र से अल्लाह की मदद तलब करो, जिससे तुम्हारे अंदर से हुब्बे माल ख़त्म होगा। जब सब्र का वस्फ पैदा होगा तो माल की मोहब्बत ख़त्म होगी। वस्सलाह, और नमाज का एहतिमाम करो, नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो, इससे ओहदे की तलब कम होगी। क्यों? तुम्हारा जो सबसे अफजल हिस्सा है उसको सबसे नीचे वाले हिस्से पर लगाकर मेरे सामने पेशानी रगड़ो, इससे ओहदे की तलब ख़त्म होगी। मगर ये पूरे इस्तेहज़ार के साथ, दिल के हुजूरी के साथ पढ़ना है। वइन्नहा लकबीरतुन, बेशक इस अंदाज से नमाज का एहतिमाम करना बड़ा मुश्किल है, मगर उस शख्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है जिसके अंदर 3 वस्फ पाए जाए। इल्ला अलल खाशिईन, जिनके दिल अल्लाह की आज़मत से भरपूर हैं, मामूर हैं, इनके लिए नमाज का एहतिमाम कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा वस्फ अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो लोग जो अपने रब से मुलाकात की तमन्ना रखते हैं, गुमान रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह के सामने देना है, उनके लिए नमाज़ों का एहतिमाम कोई मुश्किल नहीं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और क़यामत के दिन का खौफ इनके दिलों पर तारी है। जिनके अंदर 3 वस्फ पाए जाएंगे उनके लिए नमाजों का एहतिमाम कोई मुश्किल नहीं है। या बनी इसराइल, एक मरतबा फिर इयादा किया गया, नेमतों का तस्कीरा करके इनको बताया जा रहा है कि तुम मेरे अहकाम पर अमल करो। एहसान का तस्कीरा करने के बाद इंसान शर्मिंदा हो जाता है। या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, तुम मेरी नेमतों को याद करो जिसका मैंने तुम पर इनाम किया, और मैंने तुमको पूरी दुनिया वालों पर फजीलत दी। इन लोगों को खुशफहमी यह हो गई थी कि हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप दादा तो अंबिया गुजरे हैं और इन पर तो आसमानी किताबें उतरी हैं। नहनु अबनाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, और अहिब्बाउ, और अल्लाह के लाडले हैं। भला बाप बेटे को सजा देता है, और लाडला दुलारा तो लाडला होता है। हमें अल्लाह कभी अजाब नहीं देंगे। और अगर हमारे कुछ लोगों ने सामरी की वजह से बुत परस्ती में मुब्तला हो गए तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन हम जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते ये खुशफहमी कल क़यामत के दिन कुछ भी काम नहीं आएगी। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी, तुम डरो एक ऐसे दिन से जिसमें कोई नफ्स किसी नफ्स की तरफ से कुछ भी काम नहीं आएगा। दुनिया के अंदर कोई मुजरिम बन जाता है तो उसके छुड़ाने के 3 तरीके होते हैं। या तो बड़े आदमी की सिफारिश लगवाई जाती है, भाई बड़े साहब का हुक्म आया है इस मुजरिम को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया जाता है। अगर सिफारिश नहीं चलती तो टेबल के नीचे से बंद मुट्ठी में कुछ दे दिया जाता है, साहब जरा रियायत कर लो। दुनिया में तो यह भी चलता है। वला हुम युनसरून, या उसकी गुंडों की एक टीम होती है लेके पहुंच जाता है, नहीं छोड़ेंगे तो 2 दिन के मेहमान रहेंगे आप इस दुनिया में, तो उससे डर करके भी छोड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, कल क़यामत के दिन तो किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदल, और किसी से कोई फिदिया और मुआवजा लेकर के किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वला हुम युनसरून, और किसी मुजरिम की कोई टीम मदद नहीं कर सकती अल्लाह के मुकाबले में। लिहाजा ये खुशफहमी ख़त्म कर दो कि हम तो अल्लाह के बेटे, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह हमको कैसे सज़ा देगा। तुम्हारी करनी और तुम्हारे आमाल की सज़ा तुम्हें खुद भुगतनी है। आगे चूँकि अब इजमाली इनाम का तस्कीरा आया था, आगे तफसीली इनाम का तस्कीरा है, और इन्होंने क्या शुक्र अदा किया उनका भी तस्कीरा है। इंशाअल्लाह उसका तस्कीरा कल करेंगे। सुभान अल्लाह।